All right, let's get started. Hello everyone, this is Naman and I cheerfully welcome you all to today's lecture number 60 of PSIR lecture series. So in today's lecture आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सेकंड टॉपिक दैट इज अर्थशास्त्र। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में धर्मशास्त्र कंप्लीट कर दिया विच वॉज बेसिकली अबाउट मनुस्मृति राइट ऑफ मनु। In today's topic, we are going to start with Arthashastra. This is basically a Dandasastra, right? Dandasastra by Kautilya. So without any further ado, let's get started with today's lecture. But before proceeding further, let us see some of the PYQs from this particular section, right? So there are mainly 4 questions in last 10 years which has been asked from this particular topic, all right? So for example, discuss Kautilya's view on elements of state, right? Elements of state जो कौटिल्य का है दोस्तों उसका हमें व्यू बताना है। ऑलराइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नोशन ऑफ स्टेटक्राफ्ट, डिस्कस द थ्योरी ऑफ स्टेटक्राफ्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द व्यूज ऑफ कौटिल्य एंड मैकियावेली इन स्टेटक्राफ्ट, ऑलराइट, एनालाइज एज पर कौटिल्य द सप्तंगा थ्योरी ऑफ द स्टेट, ऑलराइट। सो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम्स इन द एंटायर अर्थशास्त्र दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस in very very comprehensive manner, all right? So let's see what is the Arthashastra, right? The basic introduction. So the one you can see in the picture is basically the Kautilya, also known as Chanakya. Kautilya, also known as Chanakya. He is the writer. He is the author of Arthashastra. All right. So who was Kautilya, friends? So Kautilya जो था दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट का एक पैट्रॉन था, right? He is very much famous for his statecraft, which is part of the Arthashastra, right? जो statecraft था इसका वो बहुत ही फेमस था एंड वो आज भी बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, ऑलराइट। सो कौटिल्यस वर्क अर्थशास्त्र बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ दंडशास्त्र, ऑलराइट। सो जैसे कि हमने देखा जो मनुस्मृति था दोस्तों दैट वाज अ पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र, राइट। सो इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो इसको बेसिकली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज धर्मशास्त्र एंड द सेकेंड वन इज अबाउट दंडशास्त्र, ऑलराइट, दंडशास्त्र। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि कैसे देयर इज अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी इन आवर इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, राइट। सो if dharma talks about dharma, that is ethics, it will also talk about the law, right, that is danda in the periphery, right. It will still talk about the danda, and similarly if danda talks about the politics, that is statecraft, it will also talk about dharma, right. वो धर्म के भी बारे में पॉइंट करेगा। the only matter of the fact is the intensity of the talks they do, all right। धर्म ज्यादा धर्म के बारे में बात करेगा, धर्मशास्त्र ज्यादा धर्म के बारे में बात करेगा एंड दंड के बारे में कम बात करेगा। एंड लाइकवाइज जो दंड शास्त्र है दोस्तों वो दंड के बारे में ज्यादा बात करेगा एंड धर्म के बारे में कम बात करेगा, ऑलराइट। लेकिन बात दोनों करेंगे, दोनों के बारे में। सो दिस अर्थशास्त्र बिलोंग्स टू दंड शास्त्र ट्रेडिशन, ऑलराइट। द प्राइम इशू इन अर्थशास्त्र इज स्टेटक्राफ्ट दोस्तों, राइट। सो द वेरी क्लोज वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेटक्राफ्ट is just put in the comment, okay। So I am hoping that you guys might have guessed it very very right. It is none other than Machiavelli, right? Machiavelly, who is very very famous for his shrewdness in statecraft and also known as the father of political realism, all right। So Machiavelli is very much proximate to Kautilya or Chanakya of Arthashastra, all right। So however it is also discussed, it also discusses dharma. We see the continuity between Manu and Kautilya, right? Manu, who was the author of the Dharmashastra, that is Manusmriti, right, and Kautilya is the author of Dandashastra, that is Arthashastra. So we can see a kind of relevance between both of them, all right। So this is how a introduction of Arthashastra looks like, right। ये ऐसा introduction आप लिख सकते हैं दोस्तों। Now let's see some of the central ideas which are part of Kautilya's Arthashastra। अर्थशास्त्र का जो मेन मुद्दा है दोस्तों, जो मेन मुद्दा है वो क्या है वो हम अभी देखेंगे, ऑलराइट। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे पे पूरा अर्थशास्त्र का जो स्ट्रक्चरिंग हुआ है दोस्तों इस पर्टिकुलर मुद्दा पे डिपेंड है, जो कि एक वेस्टर्न पॉलिटिकल कल्चर जो इंडिया के ट्रेडिशन को पॉलिटिकल ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज किया है उनके फेस में एक थप्पड़ भी है कि नो, वट एवर यू गाइज थिंक ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, इट इज नॉट द राइट वे टू थिंक, राइट। बिकॉज वी हैव सीन अर्थशास्त्र एंड द peculiarities
and the nature of statecraft which has been articulated in अर्थशास्त्र is very very comprehensive। जो भी चाणक्य ने अपने टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में स्टेट क्राफ्ट की बात की है दोस्तों, दैट वाज वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, राइट। बट जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने उसे बिना पढ़े, उन्होंने जस्ट बाय लुकिंग एट द कवर ऑफ द पेज ऑफ द बुक दे हैव मेड दैट assumption दैट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन दे लैक्ड द सेंस ऑफ पॉलिटिकलिटी एंड दे आर मोर एडवांस इन स्पिरिचुअलिटी, राइट। जो इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में बहुत पीछे है एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में बहुत आगे है, ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज ने हमें को, भारत को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में बांध दिया, राइट। बट वो सही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास मनुस्मृति, मनु जैसे ऑथर्स हैं, कौटिल्य जैसे ऑथर्स हैं टू शो टू द वेस्टर्न कंट्रीज कि देखो, जो आप बहुत बाद में बात किए हो पॉलिटिकल रियलिज्म के बारे में, वो हमारे बहुत पहले ऑथर्स कर चुके हैं ऑलरेडी, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट इज द कौटिल्य's अर्थशास्त्र सेंट्रल थीम इज ऑल अबाउट, राइट। So Kautilya defines statecraft as Arthashastra, right? Statecraft. Arthashastra is all about statecrafts. Okay. So Artha, as we all know that Artha is a Sanskrit term which means material well-being. All right, material well-being. But here, the material well-being or the definition of material well-being is very different from what we understand from the Western term that is materialism, दोस्तों। जो हम वेस्टर्न टर्म मटेरियलिज्म का समझते हैं वो काफी डिफरेंस है हमारे अर्थ टर्म से, राइट। क्योंकि अर्थ, जैसे चाणक्य ने बताया है, इट इज अ बेसिस ऑफ ऑल वेलबींग, राइट, ऑल वेलबींग। हमें जैसे कि जो पुरुषार्थ है दोस्तों, जैसे कि अर्थ, अधर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें से अर्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए चाणक्य ने हमें बताया है कि हम जो मटेरियल वेलबींग है उसे हम डिनाई नहीं कर सकते, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि नो बडी कैन वर्शिप इन एम्प्टी स्टोमक, राइट। नो वन कैन वर्शिप इन एम्प्टी स्टोमक, राइट। खाली पेट या भूखा पेट कभी फिलॉसफी नहीं आएगी, राइट। सो फिलॉसफी इज ऑलवेज अ स्ट्रीम ऑफ रिच पीपल, राइट। इसीलिए कौटिल्य ने बताया है स्पिरिचुअली, सोशली एडवांस होने के लिए हमें मटेरियल वेलबींग में भी फोकस करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट क्राफ्ट एंड द एसेंस ऑफ अर्थ विच Kautilya has talked about in the Arthashastra, right? So according to Kautilya, the most important objective of the king is to secure the material well-being of its people, right? Material well-being of its people, right? तो अगर मैं जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, जैसे हम मैकियावेली जब हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, तो हमने क्या जाना था? हमने ये सीखा था, one can forget the death of his father, right? Individual can forget the death of his father, but one cannot forget the loss of his property, right? So ये बताता है कि अर्थ, जो मटेरियल वेलबींग है वो इंडिविजुअल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। वो कितना इंपॉर्टेंट है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई किंग या प्रिंस लोगों की मटेरियल वेलबींग में ध्यान नहीं देगा, लोगों के मटेरियल वेलबींग सिक्योर नहीं करेगा, तो क्या होगा दोस्तों? तो लोगों के बीच में क्या होगी? सोशल इंपॉवरिशमेंट होगी, सोशल इंपॉवरिशमेंट होगी। मैं ये सारे वर्ड्स क्यों बता रहा हूं आपको? मैं ये सारे वर्ड्स इसलिए बता रहा हूं दोस्तों ताकि आप ये सारे वर्ड्स हाईलाइट करके अपने एग्जाम में एज अ की टर्म यूज कर सके। इट विल गिव यू अ गुड एज टू योर आंसर, ऑलराइट। एंड इवैल्यूएटर को भी पता चलेगा कि यू हैव डन अ क्वालिटी वर्क, ऑलराइट। सो रिमेंबर few of the important terminology, right? If the material well-being of the people is not taken care by the king, it can lead to social impoverishment. इससे क्या होगी दोस्तों? हंगर होगा, पॉवर्टी होगी। एंड इसका डायरेक्ट लिंक क्या है? इसकी डायरेक्ट लिंक है क्राइम से। जो भूखे पेट होते हैं दोस्तों, जिनके पास खाने के लिए नहीं होता है, वो किसी भी एक्ट्स को रिजॉर्ट कर सकते हैं, वो रॉबरी कर सकते हैं, वो डिकॉइटी कर सकते हैं टू सिक्योर देयर फूड, क्योंकि हंगर जो है वो बहुत ज्यादा बेसिक नीड है, राइट। आदमी अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए कौटिल्य ने पहले ही पिलर में बात की है कि इट इज हाउ इंपॉर्टेंट फॉर द किंग टू सिक्योर द मटेरियल वेलबींग ऑफ इट्स पीपल in order to secure his kingdom, his empire, his kingdom, all right. So this is what is the importance of material well-being. The artha
which Kautilya talks about in the Arthashastra. In the words of Kautilya, right? Kautilya ने खुद बोला है कि material well-being is supreme. Attainment of all other goods, that is dharma, काम, मोक्ष, depends on the material well-being. Alright? अगर लोग मटेरियली सिक्योर्ड हैं, अगर लोगों को अपनी 2 वक्त की रोटी की चिंता नहीं है दोस्तों, तभी वो अलग स्ट्रीम, अलग गोल जैसे कि धर्म, काम, मोक्ष की तरफ ध्यान दे सकते हैं, राइट? अगर पीपल आर नॉट सिक्योर अबाउट देयर 2 टाइम्स मील्स, लोगों के पास 2 टाइम खाने के लिए खाना नहीं है, देन हाउ विल दे कंसिडर, हाउ दे विल थिंक अबाउट धर्म, काम एंड मोक्ष, राइट? इसीलिए कौटिल्य भी अपने टाइम में कह के गए हैं दोस्तों कि मटेरियल वेलबींग इज सुप्रीम and attainment of all other goods, that is other goals, that is dharma, kama, moksha, it all depends on the material well-being, right? So this is a center theme, right? So in ancient times land was the main source of securing the material well-being, right? अभी हम बात कर रहे हैं sources of material well-being का। हमने ये तो देख लिया कि what is the importance of material well-being, but अब ये material well-being मिलेगा कैसे, ये मटेरियल वेलबींग किंग अटेन कैसे करेगा दोस्तों? तो एंशिएंट टाइम में द लैंड वाज द सोर्स ऑफ सिक्योरिंग मटेरियल वेलबींग। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर अभी आप ध्यान से समझे तो द प्रिमिटिव सोसाइटी वॉज बेस्ड इन एग्रीकल्चर, राइट? द इकोनॉमी वॉज एग्रीकल्चरल एग्रेरियन इकोनॉमी, राइट? जो खेती का मेन इकोनॉमी चलाता था दोस्तों जो खेत था, जो एग्रीकल्चर था, वो एक इकोनॉमी को रन करता था, राइट? तो अगर किंग को मटेरियली वेलबींग होना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रमोट कर सके, वो एग्रीकल्चरल गुड प्रोड्यूस कर सके, राइट? प्रोड्यूस कर सके। पहले तो मनी नहीं होते थे, टैक्सेशन भी सब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से होता था, राइट? सो कौटिल्य भी बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू अटेन दी सुप्रीमेसी, इन ऑर्डर टू अटेन द मटेरियल वेलबींग, द लैंड इज द मेन सोर्स, राइट? हेंस द मेन आइडिया इन अर्थशास्त्र is how to acquire the land, right? How to acquire the land. It is natural for a state to go for acquiring the land. The first land to be acquired is the land of neighbor, right? अगर अभी जब ये लाइन आप सुनते हैं दोस्तों तो आपके दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में अभी आता है the conflict between China and India in the LOC, that is line of actual control, and conflict between India and Pakistan, right? हम दोनों नेबर्स के बीच में, that is इंडिया एंड चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट किस बात की है? ये कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल अबाउट द लैंड, राइट? द बॉर्डर। चाइना हमारे देश में आके अपनी लैंड को लेने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हियर लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर बोथ ऑफ आवर कंट्री, राइट? वेदर वी टॉक अबाउट जियो स्ट्रेटेजिकली, वेदर वी टॉक अबाउट जियो पॉलिटिक्स, वेदर वी टॉक अबाउट जियो इकोनॉमिक्स, लैंड रिसोर्स इज द सुप्रीम रिसोर्स। जो ज्यादा लैंड कंट्रोल करेगा दोस्तों वो ज्यादा जियोपॉलिटिकली मोनोपोली एक्वायर करेगा, राइट? इसीलिए कौटिल्य ने बहुत पहले अपने अर्थशास्त्र में ये बता के गए हैं कि लैंड एंड द एक्विजिशन ऑफ द लैंड इज द सुप्रीम ड्यूटी ऑफ द किंग, राइट? एंड द फर्स्ट लैंड टू बी एक्वायर्ड इज द लैंड ऑफ नेबर, राइट? जब कोई भी किंग फर्स्ट लैंड जब वो एक्वायर करेगा आइदर थ्रू पीसफुल मैनर और थ्रू वॉर, वो किसका करेगा? वो नेबर का करेगा दोस्तों। हेंस नेबर्स आर नेचुरल एनिमीज, राइट? दे आर नेचुरल एनिमीज। हेंस द रिलेशन बिटवीन द 2 स्टेट्स आर द रिलेशन ऑफ वॉर, राइट? सो ये बताते हैं दोस्तों कौटिल्य की जो रिलेशन बिटवीन 2 स्टेट्स होगा वो रिलेशन ऑफ वॉर होगा। इससे इंडियन स्कूल ऑफ रियलिज्म की स्टार्टिंग होती है दोस्तों। वेस्टर्न कंट्रीज ने, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने बोल तो दिया कि इंडिया इज पॉलिटिकली बैकवर्ड नेशन, बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू एसेंस ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, राइट? जो इंडियन रियलिज्म की वो बात बहुत देर में की है, हमारे कौटिल्य पहले ही बता के गए कि what is the essence of political realism, right? So the relationship between the states is the state of war, all right? So thus Arthashastra deals with the art of war like the Sun Tzu, the Chinese strategies, right? So आप सब ने सुना होगा सुन त्जू के बारे में दोस्तों, सुन त्जू के बारे में सुना होगा। इनकी एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ वॉर, राइट? द आर्ट ऑफ वॉर इनकी बहुत फेमस किताब है। उसमें वो बताते हैं इसके बारे में, उसमें वो बताते हैं दोस्तों वॉर के बारे में, ऑलराइट? कि वॉर कैसे करेंगे
एंड वॉर के कारण क्या हो सकते हैं, एंड वॉर कैसे लड़ा जा सकता है टू विन ओवर योर एनिमीज। ऑलराइट, तो दिस इज द एसेंस ऑफ सुन त्जू स्टेट ऑफ वॉर, जो कौटिल्य से काफी ज्यादा सिमिलर है। ऑलराइट, हेंस द मेन आइडिया इन द अर्थशास्त्र इज वॉर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बैलेंस ऑफ पावर एंड जियोपॉलिटिक्स। तो जो पॉलिटिकल साइंस के 4 पिलर है दोस्तों, दैट इज वॉर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बैलेंस ऑफ पावर एंड जियोपॉलिटिक्स, ये हमारे कौटिल्य बहुत पहले ही बता के जा चुके हैं। राइट, सो नाउ इट इज अ टाइम फॉर एक्टिव रिकॉल फॉर ऑल ऑफ यू। देखते हैं आप कितने ध्यान से टकटकी लगा के इस लेक्चर को सुन रहे हैं। ऑलराइट, सो ट्राई आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों। कमेंट सेक्शन, आज आप अपने हाथ मत रोकिए, क्योंकि अगर आज आप कमेंट करने से, अपने आंसर रिस्पॉन्ड करने से रुक जाएंगे तो आपको एग्जाम में डिफिकल्टी हो सकती है दोस्तों टू रिकलेक्ट थिंग्स। राइट, इसी के लिए एक्टिव रिकॉल का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हमारे पास इतने वास्ट एंड इंटेंसिव सिलेबस है कंप्लीट करने का। ऑलराइट, इसीलिए मैं ये साइंटिफिक मेथड इनकॉर्पोरेट करता हूं दोस्तों अपने स्लाइड्स में, सो दैट आई कैन कीप योर अटेंशन अटैच्ड टू द लेक्चर। ऑलराइट, आप भटके नहीं। इसीलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कौटिल्यस अर्थशास्त्र बिलोंग टू विच ट्रेडिशन? धर्मशास्त्र, दंडशास्त्र, वेदांग, उपनिषद। राइट, अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं तो आप जरूर इसका आंसर दे पाएंगे। ऑलराइट, कोशिश कीजिए आप इसका आंसर कमेंट में दे। ऑलराइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू द मेन आइडियाज इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। ऑलराइट, सो अर्थशास्त्र कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक in geopolitics. All right, it is the first book not only in our country but in entire world. It can be considered as the first book of geopolitics दोस्तों। पहले कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात नहीं होती थी दोस्तों, पहले किंगडम्स की बात होती थी। राइट, किंगडम्स, महाजनपदास। ऑलराइट, जहां पे एक किंगडम, एक पर्टिकुलर एम्पायर एक टेरिटरी एक्वायर करते थे, एक टेरिटरी कंट्रोल करते थे, वहीं दूसरे किंग दूसरी टेरिटरी एक्वायर करते थे, एंड ये आपस में एक किंगडम थे, ये आपस में एक किंगडम थे। एंड इन दोनों की जब कॉन्फ्लिक्ट होती थी दोस्तों, ये बेसिकली होती थी किसके वजह से? जियोपॉलिटिक्स के वजह से। राइट, कोई सी पावर एक्वायर करना चाहता था, तो कोई रिसोर्सेस पे कंट्रोल करना चाहता था। राइट, पहले कोई ऐसा नेशन स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ना कि सिटी स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट था, ना ही कोई स्टेट का कॉन्सेप्ट था दोस्तों। पहले किंगडम्स की कॉन्सेप्ट थी, पहले एम्पायर्स की कॉन्सेप्ट थी। राइट, जैसे कि हम मौर्यास एम्पायर के बारे में जानते हैं, हम गुप्तास के बारे में जानते हैं, हम नंदास के बारे में जानते हैं, हम सुंगास के बारे में जानते हैं, हम ये साउथ के जितने किंगडम्स थे दोस्तों उनके बारे में जानते हैं, चोलास, पांड्यास एंड एक्सेट्रा। ये सारे एक किंगडम थे जो अपनी अपनी एम्पायर कंट्रोल करते थे। राइट, सो लेट्स से अगर मौर्यास एंड नंदास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था तो वो आपस में ही एक जियोपॉलिटिक्स इशू होता था। राइट, सो ये उस टाइम का था, एंड ड्यूरिंग हिज टाइम द अर्थशास्त्र इज द फर्स्ट बुक, वाज द फर्स्ट बुक इन जियोपॉलिटिक्स। राइट, सो व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स? जियोपॉलिटिक्स इज अ साइंस ऑफ कैप्चरिंग लैंड एंड रिसोर्सेज। राइट, वी विल सी this in further detail when we will start our 2A series. All right, so stay updated for that, but this is what is the geopolitics is all about. Right, so it is about controlling the resources. Right, आज अमेरिका इतना सुप्रीम पावर क्यों होल्ड करता है दोस्तों? why it is considered as the first country of the world? Now we are though we are not transitioning to a multiplex theater model, right, where there is a multi-power concept, where there is a multiculturalism concept, where there is a concept that multiple countries can hold multiple power, but still if we talk about hegemony, America, USA is something which hold a hegemony. right, क्यों? क्योंकि उसके पास resources हैं दोस्तों, उसके पास financial resources है, उसके पास military resources है। right, so this is how the individual which controls the maximum of the resources, land resources, financial resources and etc., that individual will basically lead the geopolitics of the world. right, ये बता के गए चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में। So according to the concept of geopolitics, state is an organism. right, state is an organism, and like any organism, state has to grow. all right, if state will not grow or expand, state will perish or decay. right, तो चाणक्य बताए हैं दोस्तों कि किसी भी कोई भी स्टेट है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, वो एक कीटाणु की तरह है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। राइट, एंड जैसे एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना होता है, उसे ग्रो करना पड़ता है, सिमिलरली स्टेट को भी ग्रो करना पड़ता है। सिमिलरली स्टेट हैज ऑल्सो टू एक्सपेंड। राइट, एंड स्टेट विल पेरिश अगर वो बढ़े ना तो। राइट, अगर वो बढ़े नहीं, वो अगर लिमिटेड रह जाए तो वो पेरिश हो जाएगा, वो डिके हो जाएगा। राइट, तो कोई भी स्टेट के अंदर स्टेट को स्टेट बनाते क्या है? उनकी पॉपुलेशन, राइट, उनके रिसोर्सेज।
तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी दोस्तों, स्टेट हैज टू एक्वायर लैंड टू अकोमोडेट पीपल, ऑलराइट। अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, अंदर में chaos होगा, राइट, अंदर में कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है, ऑलराइट। अगर अंदर में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा, स्टेट हैम्पर होने लग जाएगी, स्टेट की सॉवरेनिटी हैम्पर होने लग जाएगी, केओटिक सिचुएशन होगा, एंड अल्टीमेटली वो स्टेट होगी वो कोलैप्स कर जाएगी, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट इज द मेन आइडिया इन द कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने बहुत सालों पहले बात करके ऑलरेडी वर्ल्ड को बता दिया है दैट इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू टॉक अबाउट जियोपॉलिटिक्स, टू टॉक अबाउट द स्कूल ऑफ रियलिज्म एंड एक्सेट्रा, ऑलराइट। सो the Kautilya's Arthashastra challenges Western view that Indians lacked strategic culture. All right, so this is the first book जिसने चैलेंज किया वेस्टर्न थिंकिंग को कि इंडिया लैक्स पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कल्चर, राइट। एंड जो फर्स्ट स्कॉलर्स है दोस्तों, जो इसके फ्लैग बेयरर हैं, वो है जॉर्ज स्टैनहम, राइट। इन्होंने कैटेगरिकली रिजेक्ट किया है दैट इंडियंस हैव एनी स्ट्रेटेजिक कल्चर और विजडम, बट कौटिल्य प्रूव्स हिम रॉन्ग, राइट। तो Kautilya's अर्थशास्त्र is a kind of slap on the face of George Stanham, right? जब हम अर्थशास्त्र बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नो, जॉर्ज स्टैनहम is completely mistaken, he is completely wrong, right? Because Arthashastra is the first book which has already talked in much detail about the strategic geopolitics culture of our Indian political tradition, right? So without reading, without understanding the concept, how can you say that the India lacks political strategic culture, right? So this is how the reading of our Indian tradition and the books of our past becomes very, very important. Without understanding the Western philosophers and scholars, they keep on slamming our Indian tradition, right? इसीलिए दोस्तों आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अपनी एंशियंट ट्रेडिशन में बहुत ज्यादा फोकस इम्फेसिस पुट करती है। क्यों? क्योंकि दैट इज आवर रियल कल्चर, राइट। ये तो वेस्ट की फिलॉसफी है दोस्तों, ये वेस्ट की एक हेजेमनी है जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। हम बहुत ज्यादा एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ थिंग्स पढ़ते हैं, राइट। हम बहुत ज्यादा इंग्लिश पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं। बट कौटिल्य जो हमारे गुरु हैं, एंशियंट गुरु हैं, हम बोल सकते हैं एंशियंट पॉलिटिकल गुरु हैं, वो हमें बता के गए हैं कि देखो दोस्तों, जो आप वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखते हैं, टू अंडरस्टैंड ऑल दिस बेसिक आइडियाज, ये हम अपने खुद के लैंग्वेज में बहुत पहले बता के जा चुके हैं, विच इज वेरी 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 नेचुरल, वेरी वेरी कनेक्टेड टू आवर ओन कल्चर, राइट। तो आप बिना पढ़े बिना समझे क्यों इंडिया को ऐसा लेबल कर सकते हैं, राइट। So it is unfortunate that policymakers in India have overlooked the wisdom found in Arthashastra, right? Till the very recent time, right? Till we have the present government in power, it was completely neglected, right? Before this present government, the India's policy related to its ancient tradition was very much neglected, right? We all were very, very Western looking. हम किसी भी पॉलिसी को डिजाइन करने के लिए दोस्तों हम वेस्टर्न फ्रेमवर्क का यूज करते थे, ना कि अपनी एंशियंट कल्चर का, राइट, ना कि अर्थशास्त्र का, मनुस्मृति का एंड एक्सेट्रा, राइट। The matter of the fact is that we can neglect the negative points or the points which are in debate, but still there are several important or positive perspective that has been given by our Indian political tradition that can be accommodated, right? क्यों? क्योंकि वो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट है, right? Then why the policy makers are rejecting and not looking to our ancient traditions and rather looking to the Western framework, right? So this is the loopholes that still is prevailing, but it is our blessing, we can say, that the present government, which is taking into consideration certain एस्पेक्ट एंड स्पेसिफिकली पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है हमारी एंशियंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन का दोस्तों। जैसे कि अभी हम रिसेंट जो हमारी भारतीय न्याय संहिता आई, राइट, जो इंडियन पेनल कोड हैज बीन एक्सचेंज्ड और हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द भारतीय न्याय संहिता, राइट। सो at least by renaming something, we can at least have that connection to our own sense of law, our own sense of ethics, our own sense of politics, right? So since the beginning of 21st century, with the Hindu rightist party coming to power, there is a change in the approach of the South Bloc, right? South Bloc, the center of policy making, right? So we are rediscovering the ancient Indian wisdom, right? So several policy that we can see of the present government is very, very fascinating, that they are at least seeking to look to our ancient culture rather than completely depending on the Western framework, right? So this is what is the positive facet of the present government, friends, that we need to be proud of, right? हमें बहुत ज़्यादा प्राउड करना चाहिए कि एटलीस्ट
we are taking into consideration our own ancient tradition, which is very rich, which is very, very diverse. All right. So these are the 6 key ideas that we are going to see in the Arthashastra, right? So what are the key ideas, dosto? The first one that we will see is the state of relationship between the two countries, right? The second one is about Mandal Siddhanta. The third one is about Saptanga theory, which is again very important, and already a question has been asked from this particular part. The fourth one is Sadgunya Niti, all right? The fifth one is 4 upayas, all right? The fourfold policy that a king should accommodate in order to promote the material well-being. And the sixth and last one is types of wars, right? That we will see, which is important in the Arthashastra. All right, so these are the 6 key ideas in Arthashastra that will complete our discussion on Arthashastra and also our topic in Indian political tradition. All right, again a time for active recall. देखते हैं आप कितने ध्यान से इस लेक्चर को सुन रहे हैं अभी तक. All right, so which of the following is true in the light of Arthashastra? All right, अर्थशास्त्र के लाइट में कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है. Right, so the objective of the king is to secure spiritual well-being of the people. All right, the relation between states is that of cooperation. Neighbors states are natural enemies and states should avoid acquiring land of neighbors. Right, so true हमें बताना है. आप कमेंट कीजिए आंसर, मैं उन्हें पढ़ूंगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम शाउट आउट देंगे जो भी सही आंसर करेगा. ऑलराइट, तो एक पिछला क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था, तो 2 आंसर आपको करने हैं. एंड विद दिस वी आर डन विद द लेक्चर फ्रेंड्स. Thank you so much for watching, and if you have liked the video then please ensure to show your love by subscribing, liking and sharing the lecture with your close ones so that they also get enlightened and understand the importance of our ancient political tradition. So until very next time, this is your friend, host and guide Naman signing off. Keep watching, keep learning with UPSC by Naman Raj Gupta.